Hello class 10th. Let's continue with the chapter of database development. In previous chapter we learned the different database and how we can manipulate what are the different data types available in database. In today's class we will learn about how we can create a database in OpenOffice. Let's start. Creating a database object. There are various DBMS, RDBMS available. In this exercise, you will learn about OpenOffice base and OpenOffice source. बहुत सारे DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDB नेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसके यूज़ करके आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. इन दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट OpenOffice बेस. आप इस चैप्टर के अंदर बेस को पढ़ेंगे. So we'll start with the how we can launch OpenOffice base program. Let's check. For opening OpenOffice base, you need to click on Start button and look for LibreOffice. Here is the LibreOffice, and this you will find LibreOffice base. Click on LibreOffice base. It will take a time for launch. Just wait for start the program. When the LibreOffice base start, it start a database wizard where you have two steps: select a database and save and proceed. Welcome to the LibreOffice database wizard. Create a new database. आप या तो अपना नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल. आप किसी डेटाबेस जो आपने ऑलरेडी बना रखा है आप उसको भी ओपन कर सकते हो. कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस. अगर आपका कोई डेटाबेस कनेक्ट क्रिएटेड है, आप उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर कर सकते हो. वी विल स्टार्ट विद द क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, एम्बेडेड डेटाबेस, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट. It asks for save and proceed. Do you want the wizard to register a database in LibreOffice? Yes. If you want to register your database, you can yes. Click on yes. If you don't want, click on no, and click on finish. When you click on finish, it asks the position of save your database. I am giving the name here like class 10th save. So this is your database is created. Now your database is here, and you can proceed with your database. Just wait for loading the database. Look, now your database wizard is open. This is your basic database editor, where the first is title base, title, menu bar, different quick access menu bars, tables, queries, forms, report, create a table in design view, use wizard, and create view. So this is the basic look of LibreOffice base. After creating a database, now we create a table in database. How we can do this? Let's check. For creating a table in a database, first you click on tables. Here is the option of create table in design view और use wizard to create a table. आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं कि डिजाइन व्यू के अंदर भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं और विजार्ड को यूज भी कर सकते हैं. First we check how we can do in wizard. Click on use wizard to create a table. It will open a new wizard. First is select field. आपको कौन कौन सी फील्ड चाहिए. कैटेगरीज बिजनेस के लिए है या पर्सनल के लिए है. पर्सनल के लिए है तो अलग फील्ड्स हैं, बिजनेस के लिए है तो अलग फील्ड्स हैं. सैंपल टेबल्स के अलग अलग इवेंट दे रखे हैं यहाँ पर. आपको जो भी चीज़ चूज करनी है, जैसे टास्क ही ले रहा हूँ मैं,
मैं पर्सनल के लिए ले लेता हूँ, तो हम लोग इसके अंदर फॉर अ लाइब्रेरी बना लेते हैं। सो लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे नोट्स है, पेजेस है, टाइटल है, जनरस है, बुक आईडी है, रेटिंग है, ऑथर आईडी है। आपको इनमें से क्या क्या लेना है उनको क्लिक करेंगे और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सेलेक्ट फील्ड के अंदर आता रहेगा। टाइटल, बुक आईडी, ऑथर आईडी, मैं ये 4 चीज़ें ले रहा हूँ एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेट अ डेटा टाइप एंड फॉर्मेट, आपको किस तरह का डेटा टाइप चाहिए और आप उसका फॉर्मेट क्या रखना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज नोट्स। नोट्स फील्ड यहाँ सेलेक्टेड है, उसका डेटा टाइप है मेमो लॉन्ग वेयर केयर। एंट्री रिक्वायर्ड, आप इसकी एंट्री चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप यहाँ पे यस कर दोगे तो जब तक आप इस एंट्री को फिल नहीं करोगे तब तक ये आगे नहीं फिल होगा, तब तक ये नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, एरर शो करता रहेगा। टाइटल, टाइटल के लिए टेक्स्ट है। बुक आईडी इंटीजर है। ऑटो वैल्यूड, ऑटो वैल्यूड जो प्राइमरी कीज होती है जो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है वैल्यूड, आप उसके लिए यस और नो कर सकते हो। एंट्री रिक्वायर्ड यस और नो। ऑथर आईडी यस और नो, आपको इसके अंदर जो भी चेंज करना है आप वो कर सकते हो। द नेक्स्ट, सेट प्राइमरी की। प्राइमरी की सेट करने से ये होगा कि आपको बार बार अपने बुक को नाम से या अलग अलग आईडीज क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ उस प्राइमरी की के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। क्रिएट अ प्राइमरी की, ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की। ऑटो वैल्यू, ऑटो वैल्यू के ये अकॉर्डिंग ये अपना आप ही एक प्राइमरी की का कॉलम ऐड कर देगा और उसमें अपना आप ही वैल्यू लिखता रहेगा। या अगर आपको यूज एग्जिस्टिंग फील्ड को करना चाहते हो तो जो आपकी फील्ड्स है आप उसमें से भी किसी को प्राइमरी की सेट कर सकते हो। और या फिर आप यहाँ डिफाइन अ प्राइमरी की एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फील्ड्स, किसी 2 फील्ड्स को चूज करके भी आप प्राइमरी की को सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट, क्रिएट टेबल। व्हाट डू यू वांट टू नेम योर टेबल, आप अपनी टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी लिख रखा है बट मैं इसको चेंज कर देता हूं एंड मैं इसको लाइब्रेरी फॉर क्लास 10th। insert data immediately, modify the design और create a form based on this table। आपको इनमें से जो भी सेलेक्ट करना है वो insert data immediately and click on finish। now the new wizard is appear। id automated है। note आपको जो भी लिखना है। टाइटल बुक 1, बुक id 1212, ऑथर id सो मैंने यहाँ पे 3 एंट्रीज कर दी है। नाउ सेव द करंट रिकॉर्ड, आप इस करंट रिकॉर्ड को क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्लिक ऑन सेव द करंट रिकॉर्ड एंड क्लोज दिस वन। आपकी लाइब्रेरी फॉर क्लास 10th टेबल इज क्रिएटेड हेयर। द सेकेंड थिंग इज क्रिएटिंग टेबल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू को यूज करके आप अपनी टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ डिजाइन व्यू, अ न्यू विजार्ड इज अपीयर। यहां पर आपको आपकी फील्ड का नेम लिखना होगा, जो भी आप फील्ड यूज कर रहे हैं आपको उनका नेम लिखना होगा, फील्ड का टाइप देना होगा एंड इफ यू वांट टू गिव एनी डिस्क्रिप्शन टू दैट फील्ड यू कैन टाइप ओवर हियर। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं TSN नंबर, टेक्स्ट वेयर केयर, यूनिक आईडी लिख देता हूं मैं इसको, या प्राइमरी की। द सेकेंड थिंग इज नेम, स्टूडेंट नेम, क्लास, स्टूडेंट क्लास। नाउ ऑल्सो आई वॉन्ट टू सेट अ प्राइमरी की, मुझे एक प्राइमरी की भी सेट करनी होगी। सो फॉर क्रिएट अ प्राइमरी की जस्ट क्लिक दैट पर्टिकुलर फील्ड जिसको भी आपको प्राइमरी की सेट करना है एंड हेयर यू फाइंड अ की सिंबल। प्राइमरी की, राइट क्लिक करेंगे आप उसके ऊपर और क्लिक करेंगे
primary keeper. Now you can see here is the symbol of key appears, मतलब अब ये हमारी जो की है वो प्राइमरी की बन चुकी है. Now save your table, class 10th record, click on OK. Now your table is created. आपकी जो टेबल है वो बन चुकी है. If you want to insert your fields in, अब आपको अपनी fields insert करनी है. Click on class 10th record. Table is appear here. Now insert your desired field. जैसे आपने पहले में insert किया था टेबल में, वैसे ही आप यहाँ पर भी insert कर सकते हैं. And save your data. Close. Now this is your wizards of creating a table. This is how you can create a table in LibreOffice Base. In next class we will learn about queries, forms and reports. Thank you.